Hello dear students, welcome back to our channel. So today we are going to proceed further with the megasporogenesis and development of female gametophyte. Okay, now as we discussed in our last lecture, what was the definition of megasporogenesis? I would like you people to give it a guess. If you remember that we discussed the definition of megasporogenesis in our last lecture. So I want you to help me with it. What is the definition of megasporogenesis? Mega means what? Mega means larger than size. Sporo means what? Spores, small seeds. And genesis means what? Formation. Okay. So I hope this will give you an idea about the definition of the megasporogenesis. So what is megasporogenesis? Formation of haploid. When I say haploid, what do we mean? Haploid means half the number of gametes. Okay. So formation of haploid, that is n number of gametes, megaspores from diploid megaspore mother cell is known as what? Megasporogenesis. Repeat again. Formation of haploid megaspores from diploid megaspores mother cell gives us what? Megasporogenesis. Okay. So basically what do we mean by this? Here meiosis is taking place. This is the diploid mother cell. It will get divided into haploid cells. Okay. So this is our megaspore mother cell. Please remember this abbreviation. Megaspore mother cell. Don't forget it. So we have a diploid megaspore mother cell. It will undergo meiosis to give us haploid megaspores. Because we know that gametes cannot be diploid in nature. Because ultimately during sexual reproduction, one male gamete and one female gamete has to fuse. And if the female gamete is already diploid in nature, then the chromosome number in the offspring, in the progeny, will be disturbed. Okay? अगर progeny में हमको एक stable offspring number चाहिए, तो male gamete हमको haploid लेना है और female gamete भी haploid होना चाहिए. Always remember this. So हमको ये haploid megaspores कहाँ से मिलेंगे? Diploid megaspore mother cells. Okay. Alright. Now where is this mother cell present? Where is this megaspore mother cell present? Okay. Now yesterday we discussed about the structure of an anadromous ovule. Let's just quickly draw a structure that is similar to that. Okay. I hope this is somewhat related to it. Okay. These are your integuments layer and this is the inner embryo sac. This is technically nucellus, okay, and suppose this is your nucellus. Wait. Yeah. Suppose this is your nucellus and this is your embryo sac. So the cells from the lower part of the nucellus, I repeat, the cells from the lower part of the nucellus, these cells, the lower part of the nucellus, this entirely is a nucellus. Okay, nucellus के अंदर धीरे धीरे करके ये cells degenerate हो जाते हैं और embryo sac बनता है. पहले ये पूरा nucellus होता है. Center part, the entire center part is nucellus. धीरे धीरे करके ये cells differentiate होने लग जाते हैं. क्या होने लग जाते हैं? Differentiate. तो ये अंदर का सेल्स चला जाता है, अंदर के न्यूसेलस के सेल्स पैरेन्काइमा टिश्यू से जो बने होते हैं वो चले जाते हैं और अंदर बचता है हमारा एम्ब्रियो सैक. तो ये हमने बोला था कि ये चलाजा होता है. ऊपर का एंड इज चलाजल एंड एंड द लोअर एंड इज माइक्रोपाइलर एंड, इफ यू रिमेम्बर दिस. तो नीचे से माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से ये जो न्यूसेलस है ये डिप्लॉइड मेगास्पोर्स है. कैसे है ये? डिप्लॉइड सेल्स है. तो इनमें से कोई एक, ये न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से कोई एक सेल बनता है मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल. मतलब टेक्निकली वन सेल हाइपोडर्मल. हाइपोडर्मल मीन्स व्हाट? द सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट बिलो द लेयर. हाइपोडर्मल मीन्स व्हाट? हाइपो मीन्स बिलो, एपी मीन्स अबव. सो हाइपोडर्मल मीन्स व्हाट? द सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट बिलो द लेयर. सो दिस इज योर ओव्यूल. Wait, this is the ovary of your flower. This is the style and this is the stigma. यहाँ पर ढेर सारे ओव्यूल्स है. ये एक ओव्यूल का zoomed स्ट्रक्चर है.
तो ये ओव्यूल में हमने इंटीग्यूमेंट्स, चलाजा, माइक्रोपाइलर एक्सेट्रा एक्सेट्रा देखा था। ये हमारा सेंटर पार्ट इज न्यूसेलस। ओके, तो न्यूसेलस का जो लोअर लेयर, हाइपोडर्मल लेयर में से एक सेल जब हमारा डिफरेंशिएट होता है, क्या होता है? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का मीनिंग हमने क्या बताया था? मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर जिस लेक्चर में डिस्कस किया है, सेकेंड और थर्ड लेक्चर, उसमें मैंने डिफरेंशिएशन का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से बताया है। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है कि सेल्स अपनी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। इनिशियली जाइगोट जो होता है वो सिंगल सेल होता है, जैसे जैसे जाइगोट का सेल डिवीजन होते जाता है वैसे वैसे वो उसमें से कुछ सेल्स ब्रेन के टिश्यू बनते हैं, कुछ सेल्स इंटेस्टाइन के टिश्यू बनते हैं, कुछ सेल्स लंग्स के टिश्यू बनते हैं। तो इसका मतलब एक सेल अलग अलग जर्नी कर रहा है। एक सेल जो है जाइगोट वो अलग अलग डेस्टिनी डिसाइड कर रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम? डिफरेंशिएशन। तो ये हमारा जो पूरा न्यूसेलस है, न्यूसेलस के जो सेल्स है उसमें से एक हाइपोडर्मल सेल जो है, कोई भी जो सबसे ज्यादा फास्ट और सबसे ज्यादा नरिश्ड होगा, कोई भी एक डिप्लॉयड हाइपोडर्मल सेल फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड, इट गेट्स डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म व्हाट? टू फॉर्म आर्केस्पोरियम। वापिस बोलती हूँ, दिस इज अवर ओवरी। ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, उसमें से एक ओव्यूल का ये ज़ूम्ड स्ट्रक्चर है। ओके, ओव्यूल का स्ट्रक्चर कल आपने पढ़ा। ये है आपका न्यूसेलस। ये जो सेंटर में पूरा पार्ट है ये पूरा न्यूसेलस है, पूरा पैरेन्काइमा टिश्यू से बना है। किससे बना है? पूरा पैरेन्काइमा टिश्यू से बना है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमको एक डिप्लॉयड हाइपोडर्मल सेल मिलेगा तो ये अंदर के सेल्स, एज हमने बोला है कि पैरेन्काइमा टिश्यू की जब जरूरत होती है तभी वो आता है, नहीं तो वो नहीं आता है। तो जब हमको डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल मिल जाएगा, व्हेन वी विल गेट एमएमसी, उस टाइम में ये अंदर के सेल्स जो है ये डीजनरेट होके साइड में शिफ्ट हो जाएंगे और अंदर हमको मिलेगा एम्ब्रियो सैक। ओके, वी विल कम टू इट। सो हमको हमारा फोकस किस चीज पे है? पहला कि हमको ये सिंगल एमएमसी कहां से मिला। तो सिंगल एमएमसी कहां से मिला? ये जो हमारा पूरा न्यूसेलस है इसके लोअर लेयर से, आई एम अगेन रिपीटिंग, इसके लोअर लेयर से हाइपोडर्मल सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से, चलाजा से नहीं, हाँ चलाजा से नहीं, माइक्रोपाइल की तरफ से हमको एक सेल जो है जो डिप्लॉयड है नेचर में, मतलब विच कंटेन्स 2n नंबर ऑफ गैमेट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, वो डिप्लॉयड सेल हमको मिलता है सिंगल सेल एंड दैट अंडरगोज डिफरेंशिएशन। मतलब वो सिंगल मदर स्पोर, वो सिंगल मदर स्पोर, मदर मेगास्पोर मदर सेल, it undergoes differentiation. Okay, it undergoes maturation. Maturation करके वो क्या बनाता है? It forms archaeosporium. What does it make? Archaeosporium. Now, dear students, if you remember, what was archaeosporium? Same एंथर वाले चैप्टर में रिपीट किया है हमने, एंथर वाले लेक्चर में। आर्केस्पोरियम से दो तरीके के सेल्स हमको मिल रहे थे। एक मिल रहा था स्पोरोजीनस टिश्यू और एक हमको मिला था पैराइटल लेयर्स। पैराइटल मीन्स द एक्स्ट्रा लेयर्स। ओके, तो ये जो एक्स्ट्रा लेयर्स है वो ये है, आउटर लेयर, इनर लेयर, फ्यूनिकल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो इसमें आ जाता है। और ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, ये स्पोरोजेनस टिश्यू कहाँ पे आता है? ये आता है सेंटर में। ओके, तो मतलब मैं वापस बोलती हूँ, क्या बोला मैंने कि आपका ओव्यूल है, एक सिंगल ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस है, न्यूसेलस के लोअर लेयर से माइक्रोपाइल की तरफ से एक डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल सेंटर में आता है, वो मैच्योर होके डिफरेंशिएट करता है आर्केस्पोरियम में। आर्केस्पोरियम का काम है सेल की डेस्टिनी डिसाइड करना। तो उसमें से जो सेल्स अब डिवाइड होंगे, ये आर्केस्पोरियम सेल जो है, ये सेल डायरेक्टली फंक्शन करेगा मदर मेगास्पोर मदर सेल जैसा। ऐसा भी हो सकता है कि ये डायरेक्टली एमएमसी का काम करे, या ऐसा भी हो सकता है कि ये खुद को डिवाइड करके कुछ सेल्स को एमएमसी बना दे और कुछ सेल्स को पैराइटल लेयर्स बना दे। कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम डायरेक्टली कंसीडर करते हैं कि ये जो एक सेल हमको मिला है, दिस इज आवर एमएमसी। ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि ये ओव्यूल है, ओव्यूल के नीचे वाली लेयर से जो सिंगल सेल हमको मिला है जो डिप्लॉयड है नेचर में। कैसा है नेचर में? डिप्लॉयड। तो ये सिंगल डिप्लॉयड सेल जो है इसको ही हम एमएमसी कंसीडर कर लेंगे। क्या कंसीडर कर लेंगे इसको हम? एमएमसी, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। ओके, सो दिस डिप्लॉयड सिंगल सेल है ना, दिस
diploid single cell archisporium, it directly functions as what? Mother megaspore, mother cell. Okay, please make note of this point. ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सेकंड पॉइंट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है. अगर ये समझ गया तो ये इजीली आपको याद रहेगा. एंड द लास्ट पॉइंट, दिस मेगास्पोर मदर सेल, ये जो हमको सिंगल सेल मिला है, दैट विल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म अ टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर. क्योंकि हमने मियोसिस में पढ़ा है, हमको एक सेल से, एक डिप्लॉइड सेल से कितने सेल्स मिलते हैं? 4. एक डिप्लॉइड सेल से हमको टोटल प्रोडक्ट कितना मिला? 4. करेक्ट ना? सो दिस सिंगल मेगास्पोर मदर सेल विल गो अंडरगो इनटू मियोसिस टू गिव अस व्हाट? 4 हैप्लॉइड सेल्स, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, जिसको हम बोलेंगे टेट्राड. टेट्राड मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ 4 सेल्स. टेट्रा मीन्स 4, सो अरेंजमेंट ऑफ 4 सेल्स इज नोन एज व्हाट? Tetrad of haploid megaspores. I hope this is clear to you. Okay. This is the diagrammatic representation of your megasporogenesis. The theory that we discussed earlier. This is the diagrammatic representation for it. Okay. The hypodermal cell becoming from the micropylar end, becoming your diploid megaspore mother cell. This diploid megaspore mother cell is undergoing meiosis to form टेट्राड. ओके, मियोसिस में 1 से 4 सेल मिलता है, डिप्लॉइड से 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं. सो इट इज फॉर्मिंग लीनियर टेट्राइड ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स. एंड देन एज वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट द वन सेल, ये नहीं हमने डिस्कस किया, सॉरी, दिस वी डिडंट डिस्कस, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, दैट आउट ऑफ दीज 4 लीनियर टेट्राइड सेल्स ओनली 1 megaspore remains functional and the remaining 3 megaspores they degenerate. This step is very very important. ओके, जनरली जो चलाजर एंड पे होता है मेगास्पोर वो फंक्शनल होता है जनरली. ओके, मोस्टली ऑब्जर्व. समटाइम्स माइक्रोपाइल के साइड का भी मेगास्पोर फंक्शनल हो सकता है. दैट डजंट मैटर. आपको याद क्या रखना है, चलाजा का हो या माइक्रोपाइल का हो, एक ही मेगास्पोर फंक्शनल बचता है, बाकी के 3 मेगास्पोर्स दे डीजनरेट. ओके, बिफोर फॉर्मिंग द फीमेल गैमेट दे डीजनरेट. मेक श्योर यू मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट. ओके, दिस इज द डायग्राम फॉर मेगास्पोरोजेनेसिस. अगर आपको मेगास्पोरोजेनेसिस के लिए शॉर्ट नोट आया तो यहाँ पर हमने जो पॉइंट्स लिखे थे, दोस पॉइंट्स विल कम विद दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. ओके, नाउ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट. ओके, सो नाउ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट. दिस इज डेवलपमेंट, दिस इज मेगास्पोरोजेनेसिस एंड दिस इज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. व्हाट कैन यू सी? द फर्स्ट इनिशियल सेल which will become female gametophyte is functional megaspore. मेगास्पोरोजेनेसिस करके, मेगास्पोरोजेनेसिस में हमने क्या किया था, एक हाइपोडर्मल सेल मेगास्पोर मदर सेल जैसा काम कर रहा था, उसमें मियोसिस हुआ. मियोसिस के वजह से हमको क्या मिला, समझो इधर पे हम लिख देते हैं कि इट अंडरवेंट मियोसिस. मियोसिस करके हमको क्या मिला, लीनियर टेट्राइड ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स. और इन हैप्लॉइड मेगास्पोर्स में से एक स्पोर फंक्शनल होता है, बाकी के 3 स्पोर्स डीजनरेट हो जाते हैं. ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इसका नरिशमेंट कहाँ से मिल रहा है? लिसन अगेन. ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये साइज में बड़ा और मैच्योर कैसे होता है? बिकॉज इसको नरिशमेंट मिलता है न्यूसेलस से. कौन इसको नरिश करता है? ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इसको नरिश कौन कर रहा है? न्यूसेलस. सारा नरिशमेंट इस मेगास्पोर को जा रहा है, इसीलिए ये 3 मेगास्पोर्स नरिशमेंट डेफिशिएंट होते हैं और वो डीजनरेट हो जाते हैं. तो अब हमारा काम है सिर्फ इस फंक्शनल मेगास्पोर से. तो मैंने यही सेल यहाँ पर उठाकर रख दिया, नीचे के डीजनरेटेड सेल्स को मैंने निकाल दिए. मेरा कंसर्न सिर्फ किससे है? इस फंक्शनल मेगास्पोर से. जो ऊपर बचा है, मेरा कंसर्न सिर्फ उसी फंक्शनल मेगास्पोर से है, जिसको किसने नरिश किया है? न्यूसेलस ने. ओके, सो हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस है. हैप्लॉइड क्यों? क्योंकि ये डिप्लॉइड था, फिर हमको 4 हैप्लॉइड मिले. 4 हैप्लॉइड में से 3 हैप्लॉइड स्पोर्स डीजनरेट हो गए, सिर्फ एक हैप्लॉइड स्पोर बचा. करेक्ट ना? फंक्शनल मेगास्पोर भी कैसा है? एक हैप्लॉइड. तो इसी चीज को मैंने उठाकर यहाँ पर रखा है, मतलब इस सेल को मैंने यहाँ पर जूम करके बताया है. सो दिस इज योर फंक्शनल मेगास्पोर विच इज हैप्लॉइड इन नेचर. ओके, इसमें क्या होगा? इट विल अंडरगो माइटोसिस नाउ. ओके, क्योंकि मियोसिस के बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है? माइटोसिस.
So this functional megaspore will now undergo mitosis. Mitosis में क्या होता है? We get 1 का 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे डिविजन होते जाता है. Okay. So here the functional megaspore will undergo 3 mitosis steps. Okay. It will undergo how many mitosis? 3. So it will undergo what? It will undergo 3 mitosis steps. As you can see, the first mitosis will give us, the first mitosis will yield 2 nucleate cell. Okay, first nucleus will get divided into 2 nucleuses. तो पहला जो सेल हमको मिलेगा उसमें 2 न्यूक्लियस. सेकेंड माइटोसिस के बाद जो हमको सेल मिलेगा उसमें 4 न्यूक्लियस, क्योंकि डिवीजन हो रहा है, कंटिन्यूअस डिवीजन हो रहा है. और थर्ड स्टेज के बाद हमको जो सेल मिलेगा उसमें टोटल कितने न्यूक्लियस होंगे? 8. मतलब 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, ऐसे करके हमारा माइटोसिस का स्टेज कंप्लीट हो गया. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस स्टेज, that the shifting of the nuclei will take place. क्या होगा? आपके ये जो 4 न्यूक्लियस आपको मिले हैं ये शिफ्ट होंगे. ओके, आफ्टर the formation of the 8 nucleate cell, the shifting of the nuclei will take place. It will happen so कि चारों में से ऊपर के जो 4 सेल्स है, 4 न्यूक्लियाई है, और नीचे के जो 4 न्यूक्लियाई है, दोनों में से एक न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाएगा, और बाकी के बचे 3 न्यूक्लियाई अपने अपने पोलर एंड पे ही बचेंगे. ऊपर चलाजा की तरफ जो 3 न्यूक्लियाई बचे हैं, they will become what? In future they will become antipodal cells. What is the function of antipodal cells? Antipodal cells provide nourishment to the endosperm. मतलब आगे जाके हमारा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, PEN, ओके, उसको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? ये एंटीपोडाल सेल्स. और एक बार जब एंडोस्पर्म डेवलप हो जाएगा तो ये एंटीपोडाल सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं. लास्ट लेक्चर में एक स्टूडेंट ने ये डाउट पूछा था कि मैम एंटीपोडाल सेल्स होने या ना होने से क्या फर्क पड़ेगा? सो एंटीपोडाल सेल्स होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि वो एंडोस्पर्म को नरिश करता है. एंटीपोडाल सेल्स अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं एंडोस्पर्म का नरिशमेंट इनकम्प्लीट होगा. सो हाँ, 8 न्यूक्लियस थे, उसमें से 3 न्यूक्लियस आर placed still at their original position at the different poles, 3 at chalazal pole and 3 at micropylar end. The chalazal pole nuclei will become 3 antipodal cells, and the 3 nuclei that are placed at the micropylar end, उसमें से एक बनेगा आपका egg cell, the central one, and the 2 lateral cells will become your 2 synergids. We discussed what is the function of synergids. It helps in the attraction of pollen tube. And the 2 nuclei, हमारा इसके साथ कंसर्न है. Okay, the 2 nuclei which are shifted in the center, they will become polar nuclei, and later they will become a secondary nucleus, जो हमने ओव्यूल के स्ट्रक्चर में लेबल किया था. Okay, so these 2 polar nuclei, they will fuse together and they will become one cell with 2 nucleus. So after this stage, the last stage is nuclear fusion. Okay, ये जो 2 सेल्स है, ये जो 2 न्यूक्लियाई थे, ये अब फ्यूज हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे ये 2 न्यूक्लियाई? They will fuse together. So here we have got mature embryo sac. This is your mature embryo sac, female gametophyte. Embryo sac का दूसरा नाम female gametophyte है, which is before fertilization. This is the stage just before fertilization. Okay, fertilization होने के just पहले ये stage अचीव होता है, जिसमें आपके पोलर चलाजल पोलर पे 3 एंटीपोडाल सेल्स है, माइक्रोपाइलर एंड पे 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल है, और सेंटर में है आपका लार्ज सेंट्रल सेल. सेंटर में आपका क्या है? लार्ज सेंट्रल सेल, जिसमें कितने न्यूक्लियस हैं? 2. सो देखने में यहाँ पर ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर देखने में मेच्योर एम्ब्रियो में सेल्स कितने हैं? 7. 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स 7 है, लेकिन हमको पता है कि इसके अंदर न्यूक्लियस कितने हैं? 8. क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे ये जो 2 न्यूक्लियस थे वो यहाँ पर फ्यूज होकर एक सिंगल सेल बना है. सेल एक बना है, बट एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस फ्यूज हुए. आई होप आपको ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा. तो अब बस इसकी थ्योरी देखते जाते हैं. ओके, जब भी आपको डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट पूछा गया है तो आपको ये भी बताना है शॉर्ट में, मेगास्पोरोजेनेसिस को भी मेंशन करना है. सो शॉर्ट में कैसे मेंशन किया है हमने? मेगास्पोर मदर सेल विच इज डिप्लॉयड इन नेचर. ओके, इट अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म linear tetrad of haploid cells. Okay, generally मैंने आपको पहले ही बताया कि जनरली चलाजल वाला जो सेल है वो फंक्शनल होता है, मैच्योर होता है. वापिस बोल रही हूँ, इट इज जनरली, नॉट ऑलवेज, सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ. सो जनरली द चलाजल मेगास्पोर रिमेन्स फंक्शनल
remaining three, they get degenerate. Okay, all right. Now this functional megaspore, it will act as first cell of female gametophyte. ये जो बचा हुआ functional megaspore था, now that is going to act as first cell of female gametophyte. क्योंकि इसी का आगे आगे डिवीजन होगा और हमको फाइनल फीमेल गैमेट मिल जाएगा. दिस इज द सेल ऑफ गैमेट एंड दिस इज योर कंप्लीट गैमेट. ओके, इट अंडरगोस 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन. ये फंक्शनल मेगास्पोर कितने माइटोसिस दिखाता है? 3 माइटोसिस. Thus, at the end of माइटोसिस के एंड में हमको कितने न्यूक्लियाई मिले हैं? 8 न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, 4 of which are located at each pole. Total 8 nuclei है. 4 is in the upper pole and 4 is in the lower pole. Okay. When I say upper, I mean chalazal, and when I say lower, I mean micropylar. Okay. Now, वो जो 8 न्यूक्लियस हमको मिले हैं, the 8 nucleus that we have got, 1 nucleus from each pole. This stage, 1 nucleus from the chalazal end and 1 nucleus from the micropylar end. It will migrate. Migrate means move towards the center. As you can see, it will move towards the center and it is called as polar nuclei. क्योंकि ये 2 poles से आया है. Polar nuclei क्यों बोलते हैं हम इसको? Because it has arrived from 2 poles. One from the chalazal pole and one from the micropylar pole. That is why it is labeled as polar nuclei. Ahead. Okay, so after the fusion of the nucleus, when we get these antipodal cells and synergid cells, the 3 nuclei which are towards the micropylar end, okay, the 3 nuclei which are towards the micropylar is always below. So the 3 nuclei which are present towards the micropylar end, they form egg apparatus. उस apparatus को हम क्या बोलते हैं? Egg apparatus. It consists of, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? इस egg apparatus में आपको 3 सेल दिखाई दे रहे हैं. It consists of large central. The central cell is the larger one. So it consists of a large central cell which is haploid. Okay. It consists of large central haploid egg cell. The central cell is the egg cell, as you can see the labeling over here, and with 2 supporting cells, haploid cells, which are known as synergid cells. The supporting cells are known as what? Synergid cells. What is the significance of the synergid cells? The synergid shows hair-like projections. ये synergid cells कैसे होते हैं? Suppose if I draw it over here, these are the 2 synergid cells and this is the egg cell. This is the egg cell and these are synergid cells. So synergid cells show what? They show hair-like projection which helps in the attraction of the pollen tube. ये synergid cells में hair होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं filiform apparatus. क्या बोलते हैं हम इसको? Filiform apparatus. और ये filiform apparatus का क्या significance है? That this filiform apparatus, it actually जब pollen tube enter करेगा, मतलब आपका ये embryo sac और यहाँ से जब ये pollen tube enter करेगा, तो ये pollen tube को अंदर खींचने के लिए ये filiform apparatus का importance है. Pollen tube जब तक अंदर नहीं जाएगा, तब तक इसके अंदर के male gametes ओवरी के अंदर शिफ्ट नहीं, ओव्यूल के अंदर शिफ्ट नहीं होंगे. तो इसीलिए the filiform apparatus of the synergid is very important because it guides the pollen tube towards the egg. मतलब ये synergid cell के बीच में से, यहाँ से बीच में से आपका pollen tube एंटर करेगा और मेल गैमेट का एक गैमेट egg cell के साथ फ्यूज होके जाइगोट बनाएगा. ओके, नेक्स्ट, just like the micropylar end, similarly in the chalazal end there is an arrangement, there is an organization of 3 cells which we labeled as antipodal cells. So the 3 nuclei which are towards the chalazal end, they form antipodal cells, and as I said earlier that what is the function of these antipodal cells? It nourishes the endosperm for the nourishment of the embryo and it degenerates later. Once the nourishment is done, once the endosperm is developed, it degenerates. Okay, so we discussed the 3 cells which are at the micropylar end and the 3 cells which are at the chalazal end. Now comes the central cell. Okay, so the 2 haploid polar nuclei, ये जो बीच में सेंटर में 2 न्यूक्लियाई हैं, 2 haploid polar nuclei of central cell, they fuse to form what? They fuse to form a diploid. They fuse to form a diploid means n will become 2 haploid बोला है ना, तो n plus n, it will become 2n, which will be labeled as secondary nucleus. Okay, this will be labeled as what? Secondary nucleus or definitive nucleus. Okay,
So the two nuclei which got fused together to form a large central cell, that is labeled as secondary nucleus, because our primary nucleus is this one, the egg cell. Egg cell is your primary nucleus because that is the main cell which will do fertilization, and the secondary nucleus will work later. पहला काम प्राइमरी न्यूक्लियस का है, मतलब एग सेल का, जो फर्टिलाइजेशन करेगा, और फर्टिलाइजेशन करके जो जाइगोट बनेगा उसको नरिशमेंट देने का काम है सेकेंडरी न्यूक्लियस का. ओके, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि मेल गैमेट में दो गैमेट्स होते हैं, एक गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज करता है और एक गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है. तो जब सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ गैमेट फ्यूज करेगा मेल गैमेट, तो ये 2n प्लस मेल गैमेट का n कितना हो जाएगा 3n, और उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n. ओके, so the central cell which is composed of two polar nuclei, it fuses together to become secondary nucleus. Okay, and it happens only before the fertilization. फर्टिलाइजेशन को अगर टाइम है तो वो न्यूक्लियाई ऐसे ही रहेंगे, सेपरेटेड ही रहेंगे, वो फ्यूज नहीं होंगे. फर्टिलाइजेशन जब होने वाला होगा, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन these two polar nuclei will fuse. Please make sure of this. Okay, after that, now what is our final achievement? क्या मिला है हमको? What is the organization of the cell? The 7-celled and 8 nucleate structure is now called as what? It is now known as embryo sac, or another terminology for embryo sac is female gametophyte. Okay, all right. And lastly, so this the overall significance of the female gametophyte can be described as the method of embryo sac development. मतलब ये जो final embryo sac हमको मिला है, कैसे मिला? एक single megaspore से. So method of embryo sac development from a single megaspore is described as what? Monosporic development. What do we describe it as? Monosporic development. क्योंकि एक मेगास्पोर से हमको ये एम्ब्रियो सैक मिला. क्या बोला मैंने? एक सिंगल मेगास्पोर से, फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, फ्रॉम ओनली वन मेगास्पोर वी गॉट दिस एम्ब्रियो सैक, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. मोनो मीन्स सिंगल स्पोर, तो सिंगल स्पोर से हमको एम्ब्रियो सैक मिला, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. एंड इन एंजियोस्पर्म्स द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज एंडोस्पोरस. एंडोस्पोरस मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पूरा का पूरा फीमेल गैमेट, मतलब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, एग सेल, ये किसके अंदर डेवलप हुआ है? इट हैज डेवलप्ड विद इन दिस मेगास्पोर. मेगास्पोर के बाहर कुछ डेवलप नहीं हो रहा है, मेगास्पोर के अंदर ही सब कुछ डेवलप हो रहा है, इसीलिए उसके लिए सेकेंड वर्ड क्या है? एंडोस्पोरस. पहले मैंने क्या बोला? मोनोस्पोरिक. मोनोस्पोरिक मीन्स सिंगल स्पोर से एम्ब्रियो बनाना, एंड एंडोस्पोरिक मीन्स व्हाट? स्पोर के अंदर ही सारा डेवलपमेंट होना. सो फीमेल गैमेटोफाइट, कंक्लूजन, द फीमेल गैमेटोफाइट इज कलरलेस, इट इज मोनोस्पोरिक, सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बना. It is endosporic because the entire development is taking place inside the spore, and it is concealed. Concealed means what? Packed. If you remember the structure of ovule, this is your ovule. So this is your ovule. So your embryo sac is concealed inside this. ये पूरा का पूरा embryo sac actually यहाँ पर है. यहाँ पर 3 cells, ये central और ये यहाँ पर antipodal cells. So this is your embryo sac, which is closed, which is concealed in the ovule. और ये ovule किधर है? ये ovule आपके ओवरी में प्रेजेंट है, आपके फ्लावर के ओवरी में प्रेजेंट है. मैंने बोला था बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, तो ओव्यूल पहले मैच्योर हुआ, उस मैच्योर ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक का मैचुरेशन हुआ. Did you understand this? So this was the complete discussion about the megasporogenesis and the development of female gametophyte. Okay, just have a look at it. I hope the lecture is very useful to you. The lecture will be very useful to you. Do not forget to read the textual content after this. Okay, क्योंकि क्या होता है, पिक्चराइजेशन जब आप करते हो तो डेफिनेटली आपके दिमाग में डायग्राम्स फिट हो जाते हैं, लेकिन जब आप वीडियो देखकर एक बार टेक्स्ट बुक रीड कर लेते हो, सिंस इट्स अ पैंडेमिक सिचुएशन एंड यू हैव टाइम, तो अभी आपके पास जब टाइम है तो जब वीडियो खत्म हो जाती है तो मेक श्योर दैट यू रीड द टेक्स्ट बुक वंस, सो दैट इट गेट्स फिक्स्ड, इट गेट्स कंसील्ड विद इन योर ब्रेन, एंड यू विल नेवर फॉरगेट दीज कॉन्सेप्ट्स इन योर फ्यूचर. Okay, if you are liking our videos, if you understood today's lecture, then do not forget to comment your doubts. Even if you don't have any doubts, supposedly,
So if you don't have any doubts, then comment about your experience. Like, how are you liking the videos? Are you understanding it? Is it helpful to you in any way? The diagrams, about the theory, about the points, about the bulletins that we write, anything. We expect your feedback, okay? So that there is a scope for improvement, okay? So do not forget to comment, and if you like it very, very much, then please hit on the like button. Do subscribe to our channel and share it with as many people as possible. Okay? Thank you. See you soon.